آداب ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 9 PM خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیراعظم نے اپنی کابینہ سے 100 دنوں کا ایجنڈا طے کرنے کو کہا۔ ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے 10 نکاتی ویژن پیش۔ چین کے وزیراعظم نے مودی سے کی فون پر بات چیت۔ نئی حکومت کے ساتھ مضبوط شراکت داری کی خواہش کا کیا اظہار۔ مہاراشٹر کے جلگاؤں میں ٹکٹ چیکر پر چلتی ٹرین سے خاتون کو پھینکنے کا الزام۔ خاتون کی موقع پر ہی موت۔ منی پور میں ایک مارکیٹ کے قریب ہوا دھماکہ، 2 افراد ہلاک، 6 زخمی۔ راجناتھ سنگھ نے وزیر اعلیٰ سے کی بات۔ اور پولاورم آرڈیننس کے خلاف TRS کا تلنگانہ بند پرامن، مرکز کے اقدام کے خلاف پارٹی کا احتجاج۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کابینہ کی میٹنگ میں وزارتوں سے 100 دنوں کا ایجنڈا طے کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی ترجیحات بھی گنوائیں۔ ملک کی ہمہ جہت ترقی میں ریاستوں کی ترقی کو اہم قرار دیتے ہوئے مودی نے ریاستی حکومتوں اور متعلقہ ریاستوں کے ارکان پارلیمان کے ذریعے سامنے لائے جانے والے مسائل پر توجہ دینے کو کہا ہے۔ نئی کابینہ نے پارلیمنٹ اجلاس 4 جون سے بلانے کی سفارش صدر جمہوریہ سے کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو کام سے سروکار ہے اور ان کی نظر نتائج پر ہے۔ مودی نے ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے 10 نکاتی نظریہ پیش کیا جو اس طرح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مودی نے یہ بھی صاف کر دیا کہ ملک کی ہمہ جہت ترقی ریاستوں کو ساتھ لے کر چلے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کابینہ کی دوسری میٹنگ میں انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ وزارتیں 100 دنوں کے اندر اپنا ایجنڈا طے کرے اور ترجیحات نہ صرف درج کرے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کرے۔ پردھان منتری نے یہ وشے بھی کہا ہے پہلا 100 دن میں ہر ایک منتری اپنا اپنا ٹائم ٹیبل طے کرے، پرائمرٹی کیا ہونا چاہیے، پرائرٹی، اور جو ایشوز پینڈنگ ہے ڈپارٹمنٹ میں پرانا سرکار کے کارن سے ہو اور جو کارن ہو اس کو پرائرٹی دے کے ترنت اس کا سمادھان کرنے کے لیے پریاس کرنا چاہیے۔ حکومت سے عوام کو زبردست توقعات ہیں اور ان کی امیدوں پر کھرا اترنے کا دباؤ بھی حکومت پر ہے۔ نریندر مودی کی پوری توجہ اب عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر ہے، اس لیے وہ شفاف و اچھی حکمرانی، اسکیموں اور منصوبوں کو روبہ عمل لانے پر خصوصی زور دے رہے ہیں۔ مکھی مدعا انہوں نے کہا گورننس، سشاسن، یہ سب سے مہتوپورن وشے ہے، اس کے اوپر لوگ پرامکتا سے دھیان دینا چاہیے۔ دوسرا وشے انہوں نے کہا ڈیلیوری از امپورٹنٹ، اور تیسرا وشے انہوں نے کہا اس کے ساتھ ہی ساتھ امپلیمنٹیشن، اور انہوں نے زور دے کے یہ بھی کہا جو اسٹیٹ گورنمنٹ سے جو چٹھیاں آتے ہیں، ریکمنڈیشن آتے ہیں، اس کو امپورٹنس دینا چاہیے، اس کو ادھین کر کے ترنت ریسپانس دینا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا مختصر اجلاس بلانے کے حوالے سے بھی کابینہ نے صدر جمہوریہ سے سفارش کی ہے۔ اجلاس 4 جون سے شروع ہوگا۔ 4 جون سے 16ویں لوک سبھا کا پہلے سत्र شروع ہوگا۔ 4 اور 5 کو شپتھ گرہن ہوگا۔ 6 تاریخ کو مانیہ سبھاپتی جی کا چناؤ ہوگا۔ 7 اور 8 شنیوار اور رویوار ہے، اور 10-11 کو راشٹرپتی جی کا ابھیبھاشن کے بارے میں چرچا ہوگا،
9 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 10 और 11 को राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगा और अंत में प्रधानमंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा का समाधान देंगे। जरूरत पड़े तो उस समय की स्थिति के अनुसार एक दिन बढ़ाना क्या करना हम लोग तय करेंगे। नई काबीना की 3 दिनों में ये दूसरी मीटिंग थी। जराये के मुताबिक मोदी मुतवातिर मीटिंग करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा वो वजारतों के सेक्रेटरियों से भी तमाम मामलों पर हुई पेशरफ्त जानने के लिए फर्दन मीटिंग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चीन के वजीर आजम ली केक्यांग ने अपने हिंदुस्तानी हममनसब नरेंद्र मोदी से आज फोन पर गुफ्तगू करते हुए हिंदुस्तान की नई हुकूमत के साथ मजबूत शिराकतदारी कायम करने की अपनी हुकूमत की ख्वाहिश का इजहार किया। ली केक्यांग पहले सरबराह ममलिकत हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी से वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद सबसे पहले गुफ्तगू की है। 25 मिनट की गुफ्तगू के दौरान चीनी वजीर आजम ने दोनों मुल्कों के रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने जवाब में कहा कि चीन हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में हमेशा से तरजीही हैसियत रखता है। मोदी ने कहा कि वो चीन के साथ तमाम हल तलब मसाइल पर काम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम ली के जरिए चीनी सदर जी जिनपिंग को हिंदुस्तान दौरे की दावत भी दी। उधर अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी ने हिंदुस्तान की वजीर खारजा सुषमा स्वराज से फोन पर बात की। जॉन केरी ने वजीर खारजा सुषमा स्वराज को मुबारकबाद दी और हिंद अमरीका मुआहदे को दोबारा मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इस बातचीत के दौरान बाहमी तिजारत के मौजूदा $100 के मुआहदे को $500 तक बढ़ाने की उम्मीद जताई गई। अमरीकी वजीर खारजा जॉन केरी की जानिब से वजीर खारजा सुषमा स्वराज को किए गए फोन का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने इसे एक मुस्बत कदम करार दिया। त्रिवेदी का कहना है कि मोदी हुकूमत वाजपेयी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को आगे जारी रखेगी। कोई भी देश जो कि हमारे साथ अच्छे संबंधों की पहल करना चाहे, भारत उससे अधिक गर्मजोशी से उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। उसी संदर्भ में यदि अमेरिकी विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से कोई संपर्क साधा है तो यह एक सकारात्मक संकेत है और हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे पिछली वाजपेयी जी की सरकार में हमने तमाम देशों के साथ बहुत बेहतरीन कूटनीतिक संबंध बराबरी के आधार पर और अपने हितों को सुरक्षित करते हुए रखने में सफलता प्राप्त की थी, मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी प्रकार से शानदार कूटनीति का परिचय देते हुए भारत के हितों की सुरक्षा करते हुए और बेहतरीन दोस्ताना संबंध अमेरिका सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ बनाने में सफल होंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में टिकट चेकर पर चलती ट्रेन से खातून को फेंकने का इल्जाम है। ट्रेन से गुजरने के बाद खातून की मौके पर ही मौत हो गई। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि टीसी नशे में धुत था और इस वाकये के बाद वो पैंट्री कार में छुप गया था, मगर मुश्तइल भीड़ ने टीसी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। दूसरी जानिब जलगांव रेलवे इस मामले का दूसरा रुख पेश कर रही है। उसके मुताबिक खातून ने चलती ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। उज्ज्वला पांडे की नागहानी मौत पर जलगांव स्टेशन पर बरहम लोगों ने टीसी संपत साळुंके की खूब पिटाई की। उनके खिलाफ जलगांव जीआरपी में शिकायत भी दर्ज कराई गई है और पुलिस ने संपत को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उज्ज्वला पांडे राजेंद्र नगर पटना एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए जलगांव स्टेशन पहुंची थीं। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो उज्ज्वला पांडे ने एसी बोगी में सवार होने की कोशिश की, मगर उन्हें टिकट चेकर ने उतार दिया। ट्रेन छूटती देखकर उज्ज्वला ने अपने 10 साला लड़के पलक के साथ एक बार फिर सवार होने की कोशिश की। तभी टीसी ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसके नतीजे में वो नीचे गिर गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जैसा लगा उसे सबने देखा, हमने देखा, उसे गिराया, उसके बाद में भी वैसा बोल रहा था कि मतलब वो भाई इस लाश से फरार ही हो गया। देखा ही उसके बाद जाने के बाद टेम्पल एक्सप्रेस मध्ये चलने के लिए 32 years
इंडियाने सरकारनं उसी टाइम पीसी सालून पे वो गेटे उभे राहिला उन्होंने चढ़ने नहीं दिया आणि ढकलून दिया असा कंप्लेंट उसका बहिणीची मुलगाने दिया है। इस मामले में जलगांव जीआरपी में केस दर्ज करा दिया गया है। जलगांव रेलवे के राबिता आम्मा के अफसर वाकये का दूसरा रुख यूं बयान कर रहे हैं। ये एक दुखदपूर्ण घटना आज सुबह जलगांव स्टेशन पर घटी है और इसमें जहां पे हम लोगों को प्राथमिक जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि उस महिला ने चलती हुई ट्रेन को दौड़ते हुए पकड़ने की कोशिश की और उसमें उसका पैर फिसल के वो गिर गई। ये बात जो है ये अभी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज वहां पे जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने भी ये बताया कि उस सीसीटीवी फुटेज में भी यही दिखाई देता है कि महिला जो है वो दौड़ती है। उस महिला के पहले एक लड़का दौड़ता है, उसके बाद एक दूसरा लड़का दौड़ के गाड़ी पकड़ता है और तीसरे नंबर पर ये दौड़ती है और उनका हाथ फिसल के वो गिर जाती है। इस बारे में जो टीसी है वहां पे जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई जिनको पब्लिक ने पीटा है उन टीसी का भी पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उस महिला को गाड़ी के अंदर लेने की कोशिश की। वो महिला दौड़ रही थी, उन्होंने हाथ दिया लेकिन महिला ने जो है वो लेने से इनकार कर दिया और खुद पकड़ने की कोशिश की और वो गिर गई। लापरवाही किस जानिब से हुई और असल में प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ ये सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। मणिपुर के शिंगजामई इलाके में हुए धमाके में 2 अफराद हलाक जबकि दीगर 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये कारस्तानी मिलिटेंटों की है। शिंगजामई काफी मसरूफ तरीन इलाका है और शाम में जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त यहां भीड़ रहती है। धमाके के बाद वहां की सूरत हाल की जानकारी लेने के लिए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने वजीर आला से टेलीफोन पर बात की है। राजनाथ सिंह ने वजीर आला को कसूरवारों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए इक़दामात करने को कहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। टीआरएस के इक़्तिदार की बागडोर संभालने से कबल तेलंगाना में पार्टी की जानिब से बंद मनाया गया। पोलावरम प्रोजेक्ट की जद में आने वाले तेलंगाना के मंडलों को सीमा आंध्रा में शामिल करने के मरकज के फैसले की मुखालिफत करते हुए टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना बंद की कॉल दी थी। हैदराबाद में बंद पुरअमन और कामयाब रहा। पोलावरम प्रोजेक्ट की जद में आने वाले खम्मम जिले के 7 मंडलों को सीमा आंध्रा में शामिल करने के मरकज के फैसले की मुखालफत करते हुए टीआरएस सरबराह केसीआर की तेलंगाना बंद की कॉल पर हैदराबाद में बंद मनाया गया। शहर में बंद पुरअमन और कामयाब रहा। हैदराबाद के कोठी, एबिट्स, सुल्तान बाजार, नामपल्ली, बशीरबाग और दीगर इलाकों में तिजारती इदारे और बाजार बंद रहे। आरटीसी बसों के डिपोज तक महदूद रहने की वजह से शहर की सड़कें वीरान नजर आईं। टीआरएस के बंद की वजह से दिलसुख नगर, सरूनगर और मलकपेट इलाके में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। तिजारती इदारों, बाजारों, दुकानात और पेट्रोल पंपों के बंद होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खम्मम जिले के मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए टीआरएस कारकुनों और तेलंगाना हामियों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में भी टीआरएस लीडरों और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने हैदराबाद, बेंगलुरु कौमी शाहराह पर धरना दिया। रास्ता रोको एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में खलल पड़ा। इस मौके पर टीआरएस के एमएलसी स्वामी गौड़ ने पोलावरम ऑर्डिनेंस को वापस लेने की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मांग की। ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఏం సమాధానం చెప్తారు? తెలంగాణలో ఉన్న తెలుగుదేశం నాయకులు ఏం సమాధానం చెప్తారు? పోలవరాన్ని 7 మండలాలను ముంచడం వల్ల ఈ రోజు ఆ నాయకులు ఏమని మాట్లాడతారు? అందుకే మేము చెప్తా ఉన్నాం, దీని మీద ఏ పోరాటానికైనా సిద్ధమే, న్యాయ పోరాటానికైనా సిద్ధమే, ప్రజా పోరాటానికి సిద్ధమే. రేపు పార్లమెంట్ లో మొట్టమొదటి రోజునే తెలంగాణ 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు మోడీ గారికి నిరసన చెప్పబోతున్నారు. పోడియంలోకి పోయి నిరసన చెప్పబోతున్నారు. మరొక్కసారి మోడీ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, సమయం మించిపోలేదు. మీరు వెంటనే 2 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను పిలవండి, వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడండి. रामंतापुर, उप्पल, हफ्शीगुड़ा, घटकेसर, बोदुप्पल, मेटपल्ली के अलावा सिकंदराबाद के दीगर इलाकों में भी बंद का असर देखा गया।
बंद के पेश नजर उपल आरटीसी डिपो में 209 और सिंगीचरला डिपो में 110 बसें डिपोज तक महदूद होकर रह गईं, जबकि सरकारी व गैर सरकारी दफातर, सिनेमा हॉल और पेट्रोल पंप वीरान नजर आए। बंद के पेश नजर शहर में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने खम्मम जिले में जेर आब आने वाले मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस को हरी झंडी दिखा दी है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून सन 2014 में तरमीम करते हुए मोदी हुकूमत की जानिब से रवाना करदा इस ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के साथ खम्मम जिले के 5 मंडल मुकम्मल तौर पर और 2 मंडल जुजवी तौर पर आंध्र प्रदेश में शामिल हो जाएंगे। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने खम्मम जिले में जेर आब आने वाले मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस को हरी झंडी दिखा दी है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून 2014 में तरमीम करते हुए मोदी हुकूमत की जानिब से रवाना करदा इस ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत जेर आब आने वाले अवाम की बाजाबादकारी के कामों को बेहतर ढंग से पूरा करने के मकसद से खम्मम जिले के बाज मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना के भद्राचलम टाउन से मुल्हिका बाज गांव को छोड़कर 5 मंडलों को मुकम्मल तौर पर और 2 मंडलों को जुजवी तौर पर सीमा आंध्रा में शामिल किया गया है। मरकज का कहना है कि हमा मकसदी पोलावरम प्रोजेक्ट के तहत जेर आब आने वाले अवाम की बाजाबादकारी के लिए आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियायत देने और बेहतर नज्म नस्क को मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू इलाकों की बजाय तमाम मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने का फैसला किया गया है। हालांकि अब तक जियो नंबर 111 के मुताबिक सिर्फ रेवेन्यू गांव को ही आंध्र प्रदेश में शामिल करने के अहकामात मौजूद थे, लेकिन मरकजी हुकूमत ने सिर्फ रेवेन्यू गांव के बजाय मुतालिका तमाम मंडलों को शामिल करते हुए सीमा आंध्रा में जम करने का फैसला किया है। जिन मंडलों को सीमा आंध्रा में शामिल किया गया है उनमें वेल्लूरुपाड़ू, बोरगमपाड़ू, चिंतिनुरूर, कोनावरम, वरारामचंद्रपुरम और भद्राचलम मंडल शामिल है। ऑर्डिनेंस की ऊंचाई को लेकर तेलंगाना हामी और खासतौर पर टीआरएस पार्टी के लीडरों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। टीआरएस सरबराह और तेलंगाना के नामजद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दीगर लीडरों का कहना है कि खम्मम के 7 मंडलों के देही इलाकों में तकरीबन 1 लाख कबायली रहते हैं। अगर उनकी जमीन हासिल की जाती है तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। टीआरएस लीडरों ने मंडलों की आंध्र प्रदेश में शमूलियत मामले को गैर जमहूरी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बदायूं में 2 दलित बहनों की आबरूरेजी व कत्ल केस में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार जबकि दीगर 3 को मुअत्तल कर दिया गया है। मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आबरूरेजी की तस्दीक की गई है। इस मामले के रोशनी में आने के बाद गांव वालों ने मुजाहरा किया, जिसके बाद 7 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ख्याल रहे कि मंगल की रात से दोनों कजिन्स लापता थीं। बुध की सुबह उनकी लाशें आम के दरख्त से लटकी हुई पाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट से सहारा सरबराह सुब्रत राय को कोई राहत नहीं मिली है। सहारा ग्रुप ने सुब्रत राय की जमानत के लिए अदालत उज़्मा में नई तजावीज पेश की है। सहारा ग्रुप की ताजा अर्जदाश्त पर अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा है। वाज़ेह रहे कि सरमायाकारों को 20,000 करोड़ रुपए न लौटाने के केस में अदालत के अहकामात की अदम तामील की पादाश में सुब्रत राय इस वक्त तिहाड़ जेल में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनकरीब ही टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड समेत नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर कंट्रोल होगा। नेटवर्क 18 मीडिया को हासिल करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ओपन ऑफर में इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 78% जबकि टीवी 18 के 9% हिस्से खरीदेगा।
बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ बैन अल-अक़वामी खबरों पर। खबर मिस्र से है। मिस्र में कराए गए सदारती इंतखाबात में साबिक फौजी सरबरा अब्दुल फतेह अल-सीसी के वाज़े अक्सरियत के साथ कामयाब होने की उम्मीद है। अल-सीसी को 96.2% वोट हासिल हुए हैं, जबकि उनके हरीफ बाएं बाजू के हमदैन सबाही को 4% से भी कम वोट मिले हैं। मिस्र के साबिक फौजी सरबरा अब्दुल फताह अल-सीसी 96.2% वोट हासिल करके सदर बनने जा रहे हैं। ताहम ये इंतखाबात उस वक्त तनाज़े का शिकार हो गए जब 2 रोजा वोटिंग में कम वोटर टर्नआउट के बाद पोलिंग के लिए एक दिन की तौसी की गई, यानी बुध को भी पोलिंग मराकज खुले रहे ताकि लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकें। बताया जाता है कि ये फैसला इसलिए किया गया ताकि वोटर टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा हो और दुनिया को ये दिखाया जा सके कि गुज़िश्ता साल जुलाई में मुल्क के पहले जमहूरी तरीके से मुंतखब किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी की बरतरफी जायज थी। याद रहे कि मोहम्मद मुर्सी को अब्दुल फताह सीसी की क़यादत में फौज ने गुज़िश्ता साल जुलाई में सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। इत्तलात के मुताबिक सदारती इंतखाबात के नताइज का सरकारी तौर पर ऐलान 5 जून से पहले कर दिया जाएगा। ताहम इब्तदाई नताइज के मंजरेआम पर आने के साथ ही कायरा की सड़कों पर सीसी के हामी मिस्र का परचम थामे जश्न मनाते हुए नजर आए। जगह जगह आतिशबाजी की गई। ताहम अवाम का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इंतखाबात को धोखा करार दे रहा है। इसका मानना है कि अल-सीसी के इक़्तिदार संभालने से मुल्क में एक बार फिर तानाशाही का दौर लौट आएगा। We all know that this election is kind of play, you know. We all know, in the end, we know who's gonna be the president. Okay, so we don't need to just go and voting for something we already know the end of it. أنا رافضة للمشاركة في هذه الانتخابات التي لا تمثل الشعب المصري بأكمله. I was not going to vote because none of them can be a president for this country. Sisi is from the military, and we don't want any militaries. अल-सीसी ने 2 साल के अंदर मुल्क में बेहतरी लाने का अहद किया है। ताहम साबिक फौजी सरबराह ने यह भी कहा है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो वो ओहदा छोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। थाईलैंड में इख्तिदार पर काबिज फौज का कहना है कि वो इख्तिदार में बाकी रहना नहीं चाहती, लेकिन वो ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क में आजादाना इंतखाबात की कब इजाजत देगी। इसी बीच फौज के इख्तिदार पर कब्जा करने के खिलाफ थाईलैंड में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। बैंकॉक में फौजियों ने फौजी इख्तिदार के खिलाफ एहतजाज के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए सबसे ज्यादा मसरूफ चौराहे को सील कर दिया है। विक्ट्री मॉन्यूमेंट की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को फौजियों ने बंद कर दिया था। फौज ने रात का कर्फ्यू नाफिज कर रखा है और 5 अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा रखी है ताकि फौजी इख्तिदार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों को रोका जा सके। ณวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนออกมาเดินขบวนก็แสดงว่ายังมีคนบางคนต้องการที่จะให้บ้านเมืองเนี่ยวุ่นวายอยู่ซึ่งอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะจัดการเลือกตั้งขนาดนี้ बेंगलुरु के चित्रकला परिषद में इन दिनों 2 मुस्लिम फनकारों की मुसव्विरी की नुमाइश जारी है। ईरान की फनकारा तलहा आफशीन और मकामी फनकार उमर मुख्तार ने कैनवस पर अपने फन का जादू बिखेरा। कुदरत, इंसानियत, समाजी बुराइयों के साथ साथ ख्वातीन की अहमियत और सलाहियतों को मुसव्विरे के जरिए पेश करने की ये एक अनोखी कोशिश की गई है। बेंगलुरु के चित्रा कला परिषद में 2 मुस्लिम फनकारों ने अपने ख्यालात और तस्वीरात को कैनवस पर दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। मुसव्विरी की नुमाइश बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले नौजवान फनकार उमर मुख्तार और ईरानी फनकारा तलहा आफशीन के पेंटिंग्स पर मुश्तमिल है। इंसानियत की बका, फितरी मनाजिर और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ उमर मुख्तार की पेंटिंग का अहम मौजू रहा है। हाल ही में बेंगलुरु के केन स्कूल ऑफ आर्ट से फारिग होने वाले उमर मुख्तार की ये पहली नुमाइश है। इन्होंने अपनी पेंटिंग में समाजी बुराइयों पर भी रोशनी डाली है। बहुत कुछ ये किया हूँ, हर एक पेंटिंग में सोशल मैसेज दे रहा हूँ। खासतौर जॉइंट फैमिली के बारे में आजकल जो चल रहा है, सभी लोग इंडिविजुअली रहना चाहते हैं, सभी एक मेरा हस्बैंड वाइफ ऐसे ही जाना चाहते हैं, माँ बाप को छोड़ना चाहते हैं, बच्चों को छोड़ना चाहते हैं, और जो माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते मैरिज होने के बाद। लेकिन मैरिज होने के बाद
जो हस्बैंड वाइफ सेपरेट जाते हैं और उनके बारे में जॉइंट फैमिली नहीं रहता है उनका थिंकिंग में, उनको जो भी सुख दुख जो भी आता है वो शेयर करने के लिए किसी के हाथ में भी नहीं हो रहा है। उमर मुख्तियार की नुमाइश के साथ ईरानी फनकारा तलहा आफशीन के फनपारों की नुमाइश भी जारी है। फाइन आर्ट्स सीखने के लिए ईरान से हिंदुस्तान पहुंची तलहा इन दिनों मैसूर यूनिवर्सिटी में पीएचडी की तालीम हासिल कर रही हैं। इन्होंने रूस, यूरोप के अलावा हिंदुस्तानी मुस्लिम खवातीन के साथ वक्त गुजारा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की खूबियों और सलाहियतों को कैनवस पर उतारने की कोशिश की है। The women have something different respect. Okay, means they have a more respect than the other things in the world. And the women, I think the women do most of the difficult things in the world. So I'm not telling that the men they are not do. But for my side, the women is something different. So I've been here. I lived 1 month with the Indian Muslim ladies. I worked with them, okay? With the different countries. In the Russia also I did that. With the Russian and European, when they are in working, I live with them for 2 weeks and 3 weeks. उमर मुख्तियार और तलहा आफशीन की मुसव्विरी में इंसान के माजी और मुस्तकबिल के साथ हालात हाजरा का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिलता है। बेंगलुरु के चित्रा कला परिषद में ये नुमाइश 31 मई तक जारी रहेगी। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना से 100 दिनों का एजेंडा तय करने को कहा। मुल्क की हमाजहत तरक्की के लिए 10 निकाती विजन पेश। चीन के वज़ीर आज़म ने मोदी से की फोन पर बातचीत। नई हुकूमत के साथ मजबूत शिराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार। महाराष्ट्र के जलगांव में टिकट चेकर पर चलती ट्रेन से खातून को फेंकने का इल्जाम। खातून की मौके पर ही मौत। मणिपुर में एक मार्केट के करीब हुआ धमाका। 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। राजनाथ सिंह ने वजीर आला से की बात। और पोलावरम ऑर्डिनेंस के खिलाफ टीआरएस का तेलंगाना बंद। पुरअमन मरकज के इक़दाम के खिलाफ पार्टी का एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।